جی تو دوستو، آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کٹی ہوئی چوٹی کی قیمت 40 ایکڑ زمین کیسے چکاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں نے وہ قدم اٹھایا جس کا نہ تو کچاری خاندان نے سوچا تھا اور نہ ہی فرتونہ کے خاندان نے۔ جب وہ معافی مانگنے دشمن کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ زخم کبھی نہیں بڑھتی۔ عادل سیدھا فرتونہ ہاؤس پہنچتا ہے جہاں میرم چچا، گیزب اور ایوب خان دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے ہی جمع ہوتے ہیں۔ میرم چچا اسے بتاتا ہے یسوع نے فاطمہ کو اغوا کر لیا ہے، مگر اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا۔ پھر وہ بلند آواز میں شیری خانم کو باہر آنے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی دھمکی دیتا ہے اگر وہ باہر نہ آئیں تو جب شیرف جیل سے واپس آئے گا تو میں اسے مار دوں گا۔ یہ دھمکی سنتے ہی شیری خانم باہر آ جاتی ہے۔ عادل اسے پوچھتا ہے فاطمہ کہاں ہے؟ وہ جواب دیتی ہے میں نہیں جانتی، میں نے بھی صرف سنا ہے کہ یسوع نے اسے اغوا کیا ہے۔ عادل غصے سے کہتا ہے یہ تمہارا نکما پوتا اکیلا نہیں کر سکتا، تمہاری بہو بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل ہے۔ پھر عادل ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے اگر مجھے یسوع کا ٹھکانہ نہ بتایا تو میں تمہارے بیٹے کی خون آلود لاش کو تمہارے سامنے لا کر رکھوں گا۔ اپنی بات کر کے عادل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عادل اپنے آدمیوں کے ساتھ فاطمہ کو ہر ممکن جگہ ڈھونڈتا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملتی۔ ادھر جنگل میں قید فاطمہ کی نظر اپنے قریب پڑے ایک نوکیلے پتھر پر پڑتی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹنے لگتی ہے۔ اتنے میں یسوع واپس آتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر رک جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ رات کے وقت شیری خانم نماز ادا کر رہی ہوتی ہے جب عادل اس کے موبائل پر ویڈیو اور پیغام بھیجتا ہے۔ پیغام میں لکھا ہوتا ہے یہ ویڈیو اس وقت بنائی گئی تھی جب تمہارا بیٹا جیل کے اندر سکون سے سو رہا تھا، اگلی بار شاید وہ اٹھ بھی نہ سکے، اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو ہوتی ہے۔ شیری خانم ویڈیو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ اگلے دن شیری خانم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جیل جاتی ہے اور ساتھ میں مٹھائی لے کر جاتی ہے۔ شیرف ماں کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ چومتا ہے اور شکوہ کرتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں۔ شیری خانم حیرت سے پوچھتی ہے کیوں میرے بیٹے؟ شیرف کہتا ہے آپ نے اس میں کی زمین کچاری کو کیوں دی؟ شیری خانم اب دیدہ ہو کر کہتی ہے میں اپنے ایک بیٹے کو زمین میں دفنا چکی ہوں تو میں نہیں دفنا سکتی۔ میں 20 سال سے تمہاری رہائی کے انتظار میں ہوں، ویسے بھی تم اور زیرف راستہ تو نکال ہی چکے ہو، ہمیں اپنی زمین واپس مل جائے گی۔ شیرف حیران ہو کر پوچھتا ہے کون سا راستہ؟ شیری خانم مسکرا کر کہتی ہے ڈرامہ مت کرو، مجھے سب معلوم ہے کہ یسوع نے فاطمہ کو اغوا کیا ہے۔ شیرف سکون سے کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے۔ شیری خانم کہتی ہے مجھے اگر پتا ہوتا تو میں یہ سب اپنے طریقے سے کرواتی، لیکن میں پریشان ہوں کہ یسوع نے اسے کہیں عام سی جگہ پر تو نہیں رکھا، اگر کچاری کو اس کا پتہ چل گیا تو ہمارا پلان ناکام ہو جائے گا۔ شیرف پر اعتماد لہجے میں کہتا ہے وہ اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا کیونکہ اسے اسی کی زمین میں چھپا کر رکھا ہے، اسی کے پہاڑوں میں۔ یہ سنتے ہی شیری خانم کو سب سمجھ آ جاتی ہے۔ شیری خانم کو اس کا مطلوبہ جواب مل جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے مل کر باہر آ جاتی ہے۔ اس وقت عادل اور گیزب دوربین سے علاقے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ گیزب پوچھتا ہے عادل سے کہ کزن اب کیا کرنا ہے؟ عادل غصے سے کہتا ہے جب یسوع مل گیا تو اسے ریوڑ کے نیچے کچل دوں گا، اس کی یہی سزا ہوگی۔ تبھی اسے فون آتا ہے تو عادل کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر گاڑی سے اترتا ہے اور صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ چلو۔ یہاں یسوع سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوتا ہے جبکہ فاطمہ نوکیلے پتھر سے اپنے ہاتھوں کی رسی کو کاٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یسوع آنکھیں کھولے بنا ہی اسے کہتا ہے کیا تم تھکی نہیں ہو؟ فاطمہ نفرت سے جواب دیتی ہے اگر میں تمہیں زندہ چبا ڈالوں تب بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا، صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسکراتے ہوئے اس کے قریب آتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو تمہاری آنکھوں میں محبت نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں تم میری محبت میں گرفتار ہوگی؟ فاطمہ غصے سے کہتی ہے چاہے تم دنیا کے آخری مرد ہی کیوں نہ رہ جاؤ، میں کبھی بھی تم سے محبت نہیں کروں گی۔ باتوں ہی باتوں میں فاطمہ خاموشی سے اپنی مٹھی ریت سے بھر لیتی ہے، پھر مسکرا کر کہتی ہے ڈرنا مت چھوٹے فرتونہ، اور اگلے ہی لمحے پوری مٹھی ریت یسوع کی آنکھوں میں مار دیتی ہے۔ یسوع چیختا ہوا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ جبکہ فاطمہ تیزی سے اپنے پاؤں کی رسی کھولتی ہے اور اسے مارنے کے لیے بڑھتی ہے، اس پر جھپٹ کر اسے زمین پر گراتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبانے لگتی ہے۔ یسوع خود کو چھڑوا کر اسے نیچے کرتا ہے اور اسے کہتا ہے فاطمہ کچاری میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اتنے میں عادل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یسوع اسے دیکھتے ہی حیران ہو کر پوچھتا ہے تم نے ہمیں کیسے ڈھونڈ لیا؟ مگر جواب دینے کے بجائے عادل ایک زوردار لات مار کر یسوع کو نیچے پھینکتا ہے اور پھر فاطمہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں منظر بدلتا ہے۔ ایک گاڑی میں یسوع مجرم کی طرح بندھا ہوا جا رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری گاڑی میں عادل اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسری جانب گیزب فرتونہ ہاؤس پہنچ کر عروج کو عادل کا پیغام دیتا ہے کہ فوراً اس سے ملنے آؤ۔ عروج حیران ہو کر پوچھتا ہے کیوں بلا رہا ہے؟ گیزب جواب دیتا ہے یسوع کے بارے میں بات کرنی ہے اور ایک معاہدہ طے کرنا ہے۔ شیری خانم فوراً کہتی ہے کہ عروج کہیں نہیں جائے گا۔ گیزب یقین دلاتا ہے کہ اس کے ایک بار کو بھی ہاتھ نہیں لگے گا، وہ صحیح سلامت واپس آئے گا۔ یہ سن کر عروج غصے سے گیزب کو دیکھتا ہے مگر زیرف آگے بڑھ کر شیطانی مسکراہٹ سے کہتی ہے جاؤ
मेरे बेटे अपना हक लेकर आना। इसमें भी ओरोज के साथ चलने लगती है तो गैज़ब एतराज करता है, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी। इसमें सिर्फ एक साथ नजर उस पर डालती है और गैज़ब खामोश हो जाता है। ओरोज और इसमें गैज़ब की बताई हुई जगह पर पहुँचते हैं जहाँ आदिल अपनी बहन फातिमा के साथ एक ऊंची चट्टान पर उनका इंतजार कर रहा होता है। ओरोज बेचैनी से कहता है, ये सब क्या है। आदिल सर्द लहजे में जवाब देता है, ये कुचारी की अदालत है, हम उस दरख्त को काट देते हैं जो हमारी शाख को मोड़े। इतने में इसू को सामने लाया जाता है। उसे देखते ही ओरोज घबरा कर चीखता है, कुचारी ऐसा मत करो, उसे रेवड़ के आगे मत फेंको। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर गैज़ब और उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। इसमें भागकर आदिल के पास जाती है और इल्तिजा करती है, ऐसा मत करो। मगर आदिल सख्ती से कहता है, मैं ना तो रुकूंगा और ना ही इसे छोड़ूंगा। इसमें रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, इसू को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। लेकिन आदिल अपनी बंद मुट्ठी खोलते हुए सिर्फ एक लफ्ज कहता है, इंसाफ। अगले ही लम्हे इसू को रेवड़ के दरमियान फेंक दिया जाता है। उरूज बेबसी से चीखता है, इसमें बेबसी से रोने लगती है। पहाड़ी बकरे इसू के जिस्म पर दौड़ते हुए उसे बुरी तरह से कुचल रहे होते हैं। इधर क्लिनिक में एलिनी खुद को मसरूफ रखने के लिए क्लिनिक का सामान चेक करते हुए निकू को रिकॉर्ड करवा रही होती है। वो निकू से कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि फातिमा की फिक्र में पागल ना हो जाऊं। इतने में बाहर से ज़ैरफ के चीखने की आवाज आती है और वो जल्दी करो, अपने भाई को बचाओ। एलिनी दौड़ते हुए इमरजेंसी रूम में आती है तो शदीद जख्मी इसू को देखकर हैरत से पूछती है, ये सब क्या है, क्या ये आदिल ने किया है। मगर कोई जवाब नहीं देता। वो कैंची उठाकर इसू की शर्ट काटने लगती है जिस पर ज़ैरफ गुस्से से उसको बालों से पकड़कर पीछे खींच लेती है और कहती है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। हिजरान और इसमें ज़ैरफ को पीछे करती हैं। ज़ैरफ मुसलसल शोर मचा रही होती है कि ये मेरे बेटे को मार देगी। इसमें गुस्से से जवाब देती है, तुम ही अपने बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन हो, आज वो तुम्हारी वजह से रेवड़ के नीचे कुचला गया है। शोर इतना ज्यादा होता है कि एलिनी इसू की सांस तक नहीं सुन पा रही होती। वो बुलंद आवाज में कहती है, खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारे बेटे के फेफड़ों की आवाज को नहीं सुन पा रही, तुम्हारे शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब बाहर जाओ। सबके बाहर जाने के बाद एलिनी ओरुज से कहती है, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरे साथ हो। उसके दाईं फेफड़े से सांस की आवाज नहीं आ रही, पसली टूटकर फेफड़े में फंस गई है, इसकी सांस बंद होने वाली है, मुझे फौरन चेस्ट ड्रेन करना होगा, क्या तुम इजाजत देते हो। ओरुज घबरा कर कहता है, अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा भाई मर जाएगा। एलिनी मजबूत लहजे में जवाब देती है, अगर मैंने कुछ ना भी किया तो वो तब भी 1 से 2 मिनट में वैसे ही मर जाएगा। हिजरान परेशानी से कहती है, ये पागलपन है, हमारे पास जरूरी सामान भी नहीं। एलिनी कहती है, मैं मुतबादल इस्तेमाल करूंगी। फिर वो हिजरान और ओरुज की मदद से इसू का चेस्ट ड्रेन का अमल शुरू करती है। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस रुकी होती है मगर चंद लम्हों बाद अचानक इसू की सांस बहाल हो जाती है और सब सुकून का सांस लेते हैं। दूसरी तरफ कुचारी हाउस में अमीरम चाचा, गैज़ब और अयूब खान आदिल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही आदिल घर पहुंचता है तीनों एहतरामन खड़े होते हैं मगर आदिल किसी की तरफ देखे बिना सीधा अंदर चला जाता है। वो फातिमा के कमरे में पहुंचता है जहाँ वो आईने के सामने बैठी अपने कटे बालों को देखकर खामोशी से रो रही होती है। आदिल प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है तो फातिमा आंसुओं से भरे लहजे में कहती है, मुझे ये बाल नहीं चाहिए जिन्हें उन्होंने छुआ है। आदिल खामोशी से उसके बाकी बाल कैंची से काटने लगता है और साथ में उसके सर पर बोसा देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कसम वो तुम्हारे हर बाल की कीमत अदा करेंगे। कुछ देर बाद ओरुज अपनी दादी शीरी खानम के साथ कुचारी हाउस पहुंचता है और बुलंद आवाज में पुकारता है, बाहर आओ कुचारी। आदिल ओरुज को देखकर कहता है, तुम यहाँ आए इसका मतलब है इसू जिंदा है। ओरुज उससे पूछता है, कहो क्या चाहते हो। आदिल ठंडे मगर दो टोक लहजे में जवाब देता है, मेरी जमीन पर धोखे बंद कर दो और अपनी माँ को काबू में रखो। शीरी खानम फौरन कहती है, मैं ज़ैरफ को संभाल लूंगी लेकिन तुम अपना वादा याद रखना, शरफ को हाथ तक नहीं लगाओगे। आदिल खामोशी से सिर्फ सर हिलाकर कहता है, यही इसके लिए काफी है। दूसरे दिन वाक के दौरान आदिल एलिनी से मिलता है तो एलिनी अभी तक इसू के साथ होने वाले सलूक पर आदिल से नाराज होती है। आदिल खामोशी से फातिमा की कटी हुई चोटी निकाल कर उसके सामने रखता है और कहता है, निकू से पूछो इस चोटी में कितने बाल होंगे। एलिनी तस्वीर लेकर निकू से कहती है, निकू अंदाजा लगाकर बताओ इसमें कितने बाल हैं। निकू कहता है, मैं बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं बता सकता मगर तकरीबन 4000 बाल होंगे। आदिल फिर एलिनी से कहता है, अब अपना दोबारा सवाल को दोहराओ। एलिनी पूछती है, तुमने इसू को रेवड़ के नीचे क्यों कुचला। आदिल ठंडे लहजे में जवाब देता है, अगर वो हमारी औरतों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो मैं भी यही करूंगा, इसकी आदत डाल लो, और जिसने तुम्हें समंदर में फेंका था मैं उसके साथ भी यही करूंगा। कुछ देर बाद आदिल, फातिमा और गैज़ब के साथ एक वीरान गोदाम के सामने खड़े होते हैं। फातिमा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ भाई से कहती है, मुझे समझ नहीं आती दूसरे भाई अपनी बहनों को मोबाइल, कपड़े या
परफ्यूम तोहफे में देते हैं और मेरा भाई मुझे जलाने के लिए एक गोदाम तोहफे में दे रहा है। आदिल भी मुस्कुराता है और कहता है कितने भाई अपनी बहन को ऐसे इंतकाम का मौका देते हैं। फिर वो फातिमा से कहता है पीछे मुड़कर देखो जरा। उसके पीछे मुड़ने पर वो एक पत्थर उठाकर सिक्योरिटी कैमरा की तरफ फेंकता है जिससे उसका रुख बदल जाता है। गैजब गोदाम का ताला खोलता है जबकि आदिल ऑयल के डिब्बे उठाकर लाता है और बहन से कहता है आज सब कुछ जला दो। तीनों गोदाम के अंदर हर तरफ तेल छिड़कते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। फातिमा लाइटर जलाती है और एक ही लम्हे में आग भड़क उठती है। वो खामोशी से खड़ी जलते हुए इस गोदाम को देखती रहती है। क्लिनिक में सब मौजूद होते हैं जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। इसमें कहती है ये तो सुरमने की तरफ जा रहे हैं। ज़ैरब घबराकर दुआ मांगती है या अल्लाह खैर आग कहाँ लग गई है। इसमें कहती है मैं जाकर देखती हूँ। मगर जैसे ही वो मुड़ती है सामने आदिल खड़ा होता है। वो कहता है जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बताता हूँ। फिर ज़ैरब की तरफ देख कर कहता है तुम लोग मेरी जमीन पर आए और मुझे कहा कि जमीन दो और बदले में तुम्हें ये मिलेगा। ये कहते हुए वो फातिमा की कटी हुई चोटी निकालकर सबके सामने रखता है। फिर कहता है आज सुबह मैंने नीकू से पूछा और उसने कहा इस चोटी में तकरीबन 4000 बाल हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे 40 एकड़ चाय के बागात को जला दिया है। ये सुनते ही ज़ैरब के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। आदिल उसे देखकर सुकून से कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा ये चेहरा देखने के लिए आया था, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वापस चला जाता है जबकि इसमें भी उसकी तरफ जाती है। अरूज अपनी बेहोश माँ को संभालने लगता है। एलिनी खामोशी से खड़ी ये सब देख रही होती है। आदिल जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो इसमें उसके पास पहुंचकर उसकी गाड़ी का दरवाजा बंद होने से रोक देती है और कहती है ये सब मैंने नहीं किया। आदिल बेनियाजी से पूछता है क्या नहीं किया। इसमें कहती है मुझे मालूम नहीं था कि ज़ैरब ने फातिमा को अगवा किया है। अरूज भी नहीं जानता था, हमें तो उसी वक्त मालूम हुआ जब उसने तुम्हें तुम्हारी बहन की चोटी दी थी। मैं कसम खाती हूँ। आदिल तलखी से मुस्कुराकर कहता है मैं तुम्हारी कसमों पर यकीन करने का वक्त बहुत पहले ही पीछे छोड़ आया हूँ फरतूना दुल्हन। वो गाड़ी आगे बढ़ाता है तो इसमें उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आदिल ब्रेक लगाकर गुस्से से कहता है पागल हो गई हो क्या। इसमें मजबूत लहजे में कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं फातिमा से माफी मांगना चाहती हूँ। आदिल जवाब देता है ये माफी तुम्हें कल मांगनी चाहिए थी जब इसू को सजा दी गई थी। अगर तुम उस वक्त फातिमा के पास जाकर माफी मांग लेती तो शायद इसू को भी माफ कर देती। इसमें अफसोस से कहती है मैं उस वक्त डर गई थी। इसमें जल्दी से गाड़ी में बैठकर कहती है चलो अब निकलो यहाँ से। दूर खड़ी उसकी माँ और बहन ये सब देख लेती हैं कि गाड़ी में उसकी बहन आदिल के साथ जा रही है। दोनों को चारी हाउस में पहुंचते हैं। आदिल बुलंद आवाज में सलाम करता है तो गैजब खुशी से बाहर आता है मगर इसमें को देखते ही उसकी आवाज आहिस्ता पड़ जाती है। हैरत से पूछता है क्या तुमने इसमें को भी अगवा कर लिया है जैसे उन्होंने फातिमा को किया था। इसमें फौरन नाराजगी से कहती है मुझे अगवा करना आसान नहीं। आदिल हंसकर कहता है ये ठीक कह रही है, मैंने इसे अगवा नहीं किया बल्कि इसने मुझे अगवा किया है। तो वो उससे पूछता है अगर इसने तुम्हें अगवा किया है तो फिर ये तुम्हें तुम्हारे ही घर क्यों लेकर आई है। आदिल कंधे उचका कर कहता है ये इसी से पूछ लो। इसमें बात बदलते हुए कहती है मैं फातिमा से माफी मांगने आई हूँ। इसमें फातिमा के कमरे में चली जाती है। आदिल उसके पास जाकर उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरता है और बोसा देता है। इतने में इसमें भी अंदर आ जाती है। फातिमा उसे देखते ही हैरानी से पूछती है भाई ये यहाँ क्या कर रही है। आदिल नरमी से जवाब देता है ये तुमसे बात करना चाहती है, अगर तुम कहो तो मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। इसमें आहिस्ता से कहती है मैं सिर्फ अपनी आंखों से देखना चाहती थी, क्या तुम ठीक हो। फातिमा तल्ख लहजे में जवाब देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैसे तुम देख रही हो। इसमें नजरें झुकाकर कहती है मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। इसू ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। फातिमा उसकी तरफ देखकर पूछती है ये माफी तुम फरतूना खानदान की बहू बनकर मांग रही हो या फरतूना की मुख्तार की बीवी बनकर। इसमें धीरे से कहती है तुम मुझे जो भी समझ लो मगर तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर दो। फातिमा उठकर उसके सामने आती है और उसी का जुमला दोहराती है तुम्हें जो समझूं। फिर तल्ख लहजे में कहती है मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह तुम हो। इसमें फरतूना तुमने मेरे भाई को छोड़कर मेरे बाप के कातिल से शादी की, उसी दिन इस दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया। इसमें आहिस्ता से जवाब देती कहते हैं 1000 साल पहले एक कुचारी फरतूना खानदान की एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, तब से ये आग जल रही है। आदिल फौरन कहता है और तुमने उस आग को मजीद भड़का दिया है, ये हकीकत कबूल कर लो। फातिमा दोबारा अपने भाई के पास जाकर बैठती है और कहती है जानती हो मैं तुम्हें कब माफ करूंगी, जब मेरा भाई तुम्हें माफ करेगा। इसमें मायूसी से मुस्कुराकर कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं। फिर वो आदिल की तरफ देखकर पूछती है क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम मुझे माफ करो। आदिल जवाब देता है नहीं। फिर वो भी इसमें से पूछता है क्या तुम कभी माफ कर सकोगी। इसमें आहिस्ता से सर हिलाकर कहती है नहीं। फातिमा आखिरी बात कहती है फिर ये मौजू भी आज से हमेशा के लिए खत्म हुआ। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर चली जाती है। आदिल कहता है रोजे महशर तक ये सिलसिला खत्म हो गया, ना मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ ना तुम मुझे माफ कर सकती हो। तो जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। और यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे की कहानी मजीद दिलचस्प होने वाली है, तो तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। होच्चा कार अल्लाह अमानतोलन।